جی دوستو، پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں ریاض شاہد وہ پہلے اور آخری فلم رائٹر ہیں جن کا نام فلم کی تشہیر میں اس وقت کے ہر بڑے اسٹار اور فلم میکر سے زیادہ نمایاں لکھا جاتا تھا۔ فلم کے ٹریلر میں بار بار ان کے نام کو دہرانے کی روایت عام تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے تحریر کردہ مکالموں میں سماج کی تلخ حقیقت پر تیز دھار وار کے اثرات پائے جاتے تھے۔ ان کی بے شمار چونکا دینے والی کہانیوں اور مکالمات سے آراستہ فلمیں ہیں۔ ان فلموں سے ایک فلم کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے۔ اس فلم سے جڑی تمام تر معلومات سے آگاہی ہم آپ کو فراہم کریں گے، تو ہماری آج کی فلم ہے خاموش رہو۔ جی ہاں دوستو، خاموش رہو۔ ریاض شاہد نے آج سے 55 سال قبل جس سلگتے موضوع پر قلم اٹھایا، غور کیا جائے تو آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سمیت کئی ایشیائی ممالک میں اس فلم میں پیش کردہ مسئلے کی طرح سادہ لو اور غریب لڑکیوں کو اپنی ہوس اور لالچ کا نشانہ بنانے کا کھیل آج بھی جاری ہے۔ دھوکے سے ان معصوم لڑکیوں سے شادی کرنا اور پھر انہیں جسم فروشی پر مجبور کرنا، یہی خاموش رہو کا مرکزی خیال ہے۔ معاشرے کی اس کبھی برائی کے خلاف چند کردار آواز بلند کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے خاموش رہو۔ تو بھی احمد ہی رہی، دھوکہ، فریب، میرے خیال میں تو لڑکی بیچی گئی۔ کیسی باتیں کرتے؟ محبت بھی کوئی دکھنے کی چیز؟ یہ پرانی باتیں ہیں راجی، مجبوری زمین تک دکھوا دیتی ہے۔ محبت تو معمولی تھی، لیکن جب انسانی دماغ غیرت اور شعور سے آشنا ہو تو پھر زباں خاموش نہیں رہتی۔ یہی کچھ خاموش رہو میں انتہائی سلیقے اور اعلیٰ معیار کے ساتھ سلور اسکرین پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ فلم محض ریاض شاہد کی وجہ سے یاد نہیں رکھی جاتی، بلکہ بات یوں کہی جائے کہ ریاض شاہد کے سلگتے اور چپتے ہوئے مکالموں کو زندہ و جاوید اگر اس فلم میں کسی نے بنایا تو وہ لیجنڈ اسٹار محمد علی تھے۔ دلہن آپ کی خریدی ہوئی چیز، میری ملکیت نہیں، میں تو صرف ایک سنگھار بکس ہوں، وہ خوبصورت ڈبہ جس میں زیور رکھا جاتا ہے، پہنایا نہیں جاتا۔ جب تک فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی اس وقت تک محمد علی کو کسی نے ایک بڑے اداکار کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن خاموش رہو کی ریلیز کے بعد سینما ہسٹری تبدیل ہو کر رہ گئی۔ ایسا لگا کہ فلموں کے گونگے، بہرے اور شرمیلے ہیرو کو زبان مل گئی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ جب جوان لڑکی سہاگ کا جوڑا پہن لے تو وہ خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ عورت ہو کر نہیں سمجھ سکیں تو بھلا میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اتنا تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اجنبی مرد کا تصور دلہن کے ہونٹوں پر حیا کی مہر لگا دیتا ہے، لیکن میں تو عورت ہوں، کم از کم ذہنی کو مجھ سے نہیں شرمانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے بیچاری گونگی ہو۔ خاموش رہو کے ہدایت کار جمیل اختر کی یہ پہلی فلم تھی۔ جمیل اختر ریاض شاہد اور خلیل قیصر مرحوم کے اشتراک میں تیار ہونے والی کئی فلموں میں معاون ہدایت کار کے فرائض انجام دے چکے تھے۔ خلیل قیصر بھی ریاض شاہد کی طرح انقلابی سوچ رکھنے والے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے بھی باحیثیت ہدایت کار کئی چونکا دینے والی فلمیں تخلیق کی جن میں فرنگی اور شہید کو دائمی شہرت حاصل ہے۔ لہذا ایسے ہدایت کار کی زیر تربیت جو کچھ جمیل اختر نے سیکھا، ایک قابل شاگرد ہونے کا ثبوت انہوں نے خاموش رہو بنا کر فراہم کیا۔ میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے بزرگوں کا یہ مقولہ غلط معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہمیشہ کم عقل ہو۔ مجھے خوش کرنے کی کوشش نہ کرو جمال،
मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। साफ कह दो कि तुम्हें कुछ रस्म की जरूरत है। हक तो मेरा बनता है, लेकिन मैं अपनी जुबान से इसलिए नहीं कहता कि आप अपना फर्ज खुद ही अदा कर दिया करती। और भी मालूमात फिल्म खामोश रहो से मुतालिक हमारे पास, तो चलते हैं हस्बे साबिक फिल्म की चौंका देने वाली कहानी और इसके शानदार मुकालमों की जानिब। फिर बात करेंगे दीगर शोबों पर। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ बीमार नहीं हुआ। अलबत्ता जवान लड़की देखकर तबीयत जरूर खराब हो जाती। वैसे कल रात मैंने बाजी के पास गुजारी थी। आंखें अच्छी हैं उसकी, मगर है बड़ी बदतमीज। खामोश रहो की कहानी के दो ट्रैक हैं। एक जानिब बहादुर, राजी और उसकी माँ जो गांव में रहते हैं, दूसरी तरफ जमाल खानम और उनका जराइम पेशा गिरोह। दोनों तरफ से फैलती हुई कहानी एक ट्रैक पर आकर यकजा हुई तो हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। किरदारों का टकराव सोच के नए धारे खोलता चला गया। राजी यानी अदाकारा दीबा गांव में अपनी अंधी माँ अदाकारा जीनत के साथ रहती है और अपने गांव के फौजी जवान बहादुर यूसुफ खान से मोहब्बत करती है, लेकिन अंधी माँ को अपनी बेटी का बहादुर के साथ मिलना पसंद नहीं। वो बहादुर को कई बार टोकती भी है कि मेरी बेटी से ना मिला करे। खानम यानी कि अदाकारा मीना शूरी एक खतरनाक ग्रुप की सरगुना है जिसका काम अपने कारिंदे जमाल यानी कि अदाकारा मोहम्मद अली के जरिए मासूम और गरीब लड़कियों को शादी करके फांसना और उनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवाना है। ऐसी ही एक वारदात उन्होंने राजी के गांव के करीब की, जहां जेबी यानी कि अदाकारा गुल रोख से शादी करके ये लोग वापस जा रहे थे कि रास्ते में राजी और बहादुर इन लोगों से मिले। खानम ने राजी को देखा तो उसे फांसने का मंसूबा बनाते हुए वो वहां से रुखसत हो गई। नई नवेली दुल्हन जेबी को ससुराल पहुंचकर मालूम हुआ कि जमाल तो महज उसका नुमाइशी शोहर है। उसे वहां जिस्म फरोशी के लिए लाया गया है। उसे ख्याल आता है कि बाप ने रुखसत करते वक्त नसीहत की थी कि ससुराल में बाप की लाज रखना और हर सितम पर खामोश रहना, लेकिन जेबी वहां से फरार होने की कई बार कोशिश करती है और हर बार खतरनाक कारिंदा फोमी उसका रास्ता रोक लेता है और वो बेहोश हो जाती है। जेबी के खानम के कैद खाने में और भी कई लड़कियों से मुलाकात होती है जिनमें तराना भी शामिल है। वो जेबी को तमाम हकीकत से आगाह करती है कि अब तुम भी हमारी तरह एक खतरनाक जाल में फंस चुकी हो जहां से फरार होना मुमकिन नहीं, सिर्फ मौत ही इस जाल से तुम्हारे निकलने का वाहिद रास्ता है। यूं जेबी खानम का नया शिकार बनकर खामोश रहती है। अगर भागना ही था तो मुझे बता दिया होता, इस मूवी के हत्थे को न चढ़ते। मुझसे खौफ न खा, मैं भी तुम्हारी तरह बेबस औरत हूँ। नहीं, आप भी बहुत सी लड़कियां इस दोजख में बंद हैं। खानम जमाल को तैयार करती है कि राजी के गांव चलते हैं ताकि अपना नया शिकार कर सकें। इधर गांव में बहादुर छुट्टियां खत्म होने के बाद छावनी चला जाता है। खानम राजी की माँ से मिलती है और जमाल के रिश्ते की बात करती है। माँ अपनी बेटी का रिश्ता जमाल से तय करने पर रजामंद हो जाती है। औरत गंदगी का छींटा बन जाए तो हर आदमी उससे अपना दामन बचाने लगता है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि तुम अपने आप को एक दामन बना लो और इस दामन पे अपने दावों से गहरा रंग चढ़ा लो। जमाने का हर फर्द
इसी दामन के साए में पनाह लेगा। बदनामी का ये दाग मौत भी नहीं धो सकती ज़ेनी। लेकिन राजी इनकार करती है और बजरिया तार बहादुर को इतला देती है कि वो जल्द गांव आए, वरना हम दोनों कभी एक नहीं हो सकेंगे। राजी खानम और जमाल के पास रेस्ट हाउस भी जाती है, जहां वो उन दोनों के सामने शादी करने से इनकार करती है और उन्हें बुरा भला भी कहती है। इसमें हंसने की क्या बात है खानम? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आई है कि तुम एक जवान लड़की को इतना अक्लमंद समझते हो। जो लड़की ससुराल पहुंचने तक घूंघट उठाकर अपने खामद की सूरत नहीं देख सकी, वो भला मेरा असली रूप क्या देखेगी? लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे पता चल गया है कि मैं उसे ब्याह कर लाया। अब पता चल भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है कि दूसरी लड़कियों की तरह चंद दिनों तक अपनी बेबसी का मातम करके चुप हो जाए। ये तो मैं भी जानता हूँ कि औरत हालात के सामने बहुत जल्द हथियार डाल देती है। तो फिर डरते किस बात से हो? डरता नहीं, सिर्फ आपकी हिम्मत पर हैरान हो रहा हूँ। झूठ न कहो जमाल। मान लो कि तुम एक जवान मर्द होकर बैठ के उस दरख्त की तरह कमजोर हो जो हवा के एक झोंके से कांप उठता है। आप तो बात को यूं ही बढ़ा देती हैं खानम, वरना क्या मैं नहीं जानता कि औरत बगावत के मुतालिक सोच तो सकती है, उस पर अमल नहीं कर सकती। इस दोज़ख में आने वाली हर लड़की गुनाह के एहसास में सुलग तो सकती है, चिंगारी नहीं बन सकती। तो फिर बहस किस बात की? देखते रहना, थोड़े दिनों तक ज़ैनी भी जल जल कर बुझे हुए चराग की तरह इसी अंधेरे का एक हिस्सा बन जाएगी। और गुनाहों की इस नुमाइश में बाकी तस्वीरों की तरह एक तस्वीर बनी लटकी है ना? तस्वीर नहीं, एक खाका। खाका भी नहीं बल्कि एक बेजान ढांचा को। जमाल राजी की मासूमियत से मुतासिर होता है और दिल ही दिल में फैसला करता है कि वो इस लड़की की जिंदगी तबाह नहीं होने देगा। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, खानम ने लड़की को बेहोश किया और गाड़ी में डालकर शहर रवाना हो गए। रास्ते में बहादुर से उनका आमना सामना भी हुआ, लेकिन वो ये ना समझ सका कि गाड़ी में राजी को अगवा करके ले जाया जा रहा है। सुन लीजिए, रात के वक्त आया हुआ टेलीफोन है, जरूर किसी इज्जतदार व्यापारी का हो। हेलो, कौन? खान बहादुर साहब? तो मैं भी भिजवाए देती हूँ, लेकिन सुबह आपको एक सिफारिश करनी होगी। जी, एक लड़की की जमानत के सिलसिले में। जी, थैंक यू। शहर पहुंचने पर खानम ने जमाल से कहा कि वो राजी की इज्जत तार तार कर दे ताकि हमेशा के लिए उसकी जबान खामोश हो जाए, लेकिन जमाल ऐसा करने से इनकार करता है, जिस पर खानम गुंडों के जरिए उस पर तशद्दुद करती है। इसी दौरान बहादुर भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद क्या हुआ? जी दोस्तों, उस वक्त एक सवाल के साथ कई और सवाल जन्म लेते हैं। राजी की इज्जत बहादुर बचाने में कामयाब हुआ कि नहीं? जमाल ने किस तरह खानम और उसके ग्रुप को ठिकाने लगाया और एक ऐसा रिश्ता सामने आया कि देखने वाले चौंक पड़े। अंधी माँ को उसका गुमशुदा बेटा मिल गया। ये कौन था? इन तमाम सवालों के जवाब आपको फिल्म खामोश रहो देखने पर ही मिल सकते हैं। मैंने कयामत तक खामोश रहने का फैसला किया था, लेकिन वक्त भी गुजर चुका है और कयामत के बाद मुझ में चुप रहने का हौसला बाकी नहीं। जी दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस कदर शानदार स्क्रिप्ट और मुकालमे खामोश रहो का हिस्सा थे। ये फिल्म 31 जुलाई 1964 को मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्म साज तजम्मुल हुसैन रिजवी की इस फिल्म ने सिंध सर्किट में शानदार बिजनेस करते हुए सिल्वर जुबली मनाई। मेरे साथ तो वक्त ने मजाक किया था, लेकिन ये मजाक किसने किया? ये नाइंसाफी किसने की है? मैंने
समाज नहीं है, समाज बनाने वालों ने। खामोश रहो के मौसीकार खलील अहमद थे, जबकि नगमात की शायरी तनवीर नकवी, हिमायत अली शायर और हबीब जालिब के जोर कलम का नतीजा थी। खास तौर पर फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक तहरीर करदा हबीब जालिब के गीतों का तो जवाब नहीं था। जागने वालों जागो मगर खामोश रहो और तुमने लूटी है इंसाफ की आबरू, तुमने बेचा है सदियों लहू हमारा, हम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये शायरी इस कदर मकबूल है कि हर इनकलाबी और सियासी तहरीक में ये अशआर आज भी गूंजते सुनाई देते हैं। इन नगमात को अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया नसीमा शाहीन, नजमा नियाजी, नाहिद नियाजी, माला और अहमद रुश्दी ने। फांसी लगा दीजिए मुझे, रिहा कर दीजिए इन बेचारियों को, वो हालात बदल दीजिए कि इन लड़कियों को माओ की गोद से खींच कर जरूरत के बाजार में ना बेचते, कुछ तो कीजिए। खामोश रहो के अक्कास फयाज शेख थे, जिनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार करार दी जा सकती है। फिल्म में माविन कैमरामैन सरवर गुल थे, जो बाद में नामवर फोटोग्राफर के तौर पर सामने आए। खामोश रहो की सिर्फ एक खामी है जो फिल्म में कुछ मकामात पर, खास तौर पर पहले हाफ में बहुत ज्यादा महसूस होती है कि मनाजिर को तवील करके फिल्म का टेम्पो सुस्त किया गया है। ताहम दूसरे हाफ में ये खामी दूर की जाती है, इसलिए फिल्म बीन क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म के शहर में इस तरह गुम होते हैं कि पहले हाफ की खामी को भूल जाते हैं। हौसला रखो माँ, सिर्फ इस खुशी में यह गम बर्दाश्त कर लो कि तुमने मुझे पा लिया। फिल्म में यूसुफ खान हीरो और फौजी बने, लेकिन उनका किरदार मोहम्मद अली के सामने उभर न सका। दीबा उनकी हीरोइन थी और फिल्म के दूसरे हाफ में कहानी का सारा बोझ उनके कंधों पर रहा और उन्होंने बहुत महारत से अपने किरदार में जान डाली। जीनत मुकम्मल तौर पर अंधी खातून की थ्योरी निभाने में नाकाम रहीं और ओवर हो गईं। तराना, गुलरुख और फोमी के सपोर्टिंग करेक्टर जहन में नक्श रह जाते हैं। असलम परवेज और तारिक अजीज मेहमान अदाकार के तौर पर फिल्म में नजर आए। तारिक अजीज मरहूम की ये पहली फिल्म थी। मीना शूरी फिल्म का सबसे बड़ा और अहम किरदार। सिर्फ एक जुमला के शायद मीना शूरी का फिल्मी कैरियर इसी किरदार के लिए था कि इससे बढ़कर कोई और दूसरा किरदार उनके फनी कैरियर में दिखाई नहीं देता। खामोश रहो का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो अदाकार मोहम्मद अली हैं, जिन्होंने अपनी सदाकारी की सलाहियतों की बदौलत फिल्म के क्लाइमैक्स में शानदार मुकालमे अदा किए कि बड़े बड़े हीरोज के लिए खतरे की घंटी बजा दी के अब उनका दौर खत्म, लीजेंड मोहम्मद अली का दौर शुरू होने जा रहा है। इधर देश में वकील साहब, सवाल करना है तो मुझसे करो और जवाब लेना है तो उन चेहरों से लो जो अपने आपको सवाल बनाए बैठे हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म। उम्मीद है हज़्ब साबिक आपको हमारा तबसरा पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपनी राय देना ना भूलिए। अगली फिल्म तक यासीन हमीद को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।